باطل فرقہ کے لوگ، ان کا چہرہ دیکھو، ان کے مدارس کو دیکھو، ان کی مسجدوں کو دیکھو، ان کی درسگاہوں کو دیکھو، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ کتنے یہ لوگ اپنے دین میں اور اپنے مذہب میں ذوق و شوق رکھتے ہیں، مگر یہ ساری چیزیں باہر کی ہیں، ظاہری ہیں، اندر اصل یا اندر کسی ایمانی جلوے کا وجود تک نہیں ہے، اندر سب خرابی ہے اور تاریکی ہے، اندھیرا ہے، یہ سب دکھاوے کا ہوتا ہے۔ انہی لوگوں کے بارے میں تو قرآن نے اس زمانے میں فرمایا تھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ تھوڑا دھیان سے آپ سننا میرے بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، میں قرآن کی آیت آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس زمانے میں، اس دور میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، نماز پڑھنے والے، غزوہ میں شرکت کرنے والے بھی تھے، جن کی اصلیت کو قرآن نے بیان کر دیا۔ قرآن نے بتایا کہ لوگوں میں سے کچھ ہیں ایسے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ تعالی پر اور یوم آخر پر، مگر قرآن بتا رہا ہے اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات اور اوصاف اور خوبیوں کے منکر تھے۔ ان لوگوں سے کہا گیا کہ آمنو کما آمن الناس، اے منافقو تمہارا یہ کہنا معتبر نہیں، قابل قبول نہیں ہے، اس میں کوئی صداقت کی روح نہیں ہے۔ اگر کہنا ہی ہے، ایمان لانا ہی ہے، تو ایسا ایمان لے آؤ کما آمن الناس۔ الناس یقول مفسرین فی کتبہ کا ابی بکر، کا عمر، کا عثمان، کا علی ونحوہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے کلمہ پڑھنے والوں اور ایمان کی رٹ لگانے والوں، ہرگز تمہارا کہنا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اب بھائی کلمہ تو کلمہ ہی ہے۔ بہت سے لوگ، آج کا تو دور ایسا ہے نا، صلح کلیت کا زمانہ ہے، شہر میں تو ایسی وبا چلی ہے جو کورونا سے بھی بہت خراب ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی تو مسلمان ہیں، معاذ اللہ۔ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بے شک بے شک، سبحان۔ کیا بات ہے، واہ۔ آپ دیکھیں گے مفسرین نے، علامہ سیوطی کی کتاب دیکھو، علامہ آلوسی کی کتاب دیکھو، اور صاحب روح البیان کو دیکھو، تفسیر معالم اور دیگر تفاسیر جو معتبر، مثلا امام فخر الدین رازی کی تفسیر ہے،
वगैरह रहमहुमुल्लाह, उन्होंने कहा कि कुरान इनसे कह रहा है तुम्हारा कलमा मोतबर नहीं, तुम्हारा दीन दिखाना मोतबर नहीं, तुम्हारा ईमान लाने की रट लगाना मोतबर नहीं। अगर ईमान लाना चाहते हो तो ऐसा ईमान लाओ, और कलमा पढ़ना चाहते हो तो ऐसा कलमा पढ़ो जैसा अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा, वाह वाह, बेशक जैसा फारूक आजम ने पढ़ा, जैसा उस्मान गनी ने पढ़ा, जैसा अली मुर्तजा ने पढ़ा और दिगर सहाबा किराम। बेशक अब यही से मसलक की इब्तिदा होती है। बेशक बेशक, हाँ सुभान अल्लाह, ये मसलक बरहक नहीं है, ये मसलक बरहक है। बेशक बेशक, बेशक, कलमा यहाँ भी है, कलमा यहाँ भी है, बहुत ईमान लाने का दावा यहाँ भी है, बहुत ईमान लाने का दावा यहाँ भी है, कुरान यहाँ भी पढ़ा जाता है, कुरान यहाँ भी पढ़ा जाता है, नमाज यहाँ भी अदा होती है, यहाँ नमाज यहाँ भी पढ़ी जाती है। मगर कुरान हुक्म दे रहा है, कुरान फैसला दे रहा है कि इनका कलमा मोतबर नहीं, इनका ईमान लाने का दावा मोतबर नहीं, इनका दाढ़ी रखना अमामा पहनना मोतबर नहीं, इनका नमाज पढ़ना मोतबर नहीं, इनका मोतबर है, ये मिसाल है, ये नमूना है, ये मेयार हक है। बेशक बेशक बेशक, अगर कलमा पढ़ना है तो इनके सांचे में आ जा, इनका मसलक अपना लो। बेशक बेशक, सुभान आज हम कहते हैं ना कि मसलके आला हजरत, बेशक, तो पब्लिक में तो क्या है कि बेचारे मोहब्बत वाले ज्यादा हैं, अकीदत वाले ज्यादा हैं, इल्म वाले कम हैं। और अकीदत पर इल्म की लगाम नहीं होती ना, तो वो अकीदत कभी कभी मरवा देती है, पागल कर देती है। लोगों ने अकीदत ही में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह दिया। माज़अल्लाह, अस्तग़फिर, लोगों ने अकीदत ही में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह दिया, माज़अल्लाह। और लोगों ने अकीदत ही में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को न सिर्फ उलूहियत पर जलवा फरमा माना, बल्कि उन शिया लोगों ने तो अपनी किताब में लिखा है कि अल्लाह को भी अली ही ने पैदा किया। माज़अल्लाह, बोलो माज़अल्लाह, बोलो एक माज़अल्लाह, बार। अस्तग़फिरुल्लाह, कैसी कैसी बातें लिखी है कि दीन बाकी ही न रहे, और फिर बुत परस्तों में और हम में कोई फर्क ही न रहे। लिखा कि कुरान के 40 पारे थे, कुरान के 40 पारे, 10 पारे अबू बकर ने, उमर ने और आयशा रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने इधर उधर कर दिए। यानी ऐसी ऐसी बातें लिखी है। ये सब कौन है? शिया है, राफजी है सब। और आज के जमाना में हम ये कह रहे हैं कि मजहबे अहले सुन्नत वल जमाअत उर्फ, जिसकी शनाख्त तो पहचान मसलके हुजूर आला हजरत के नाम से है, इसलिए कि आला हजरत ने एक तरफ बातिल गुमराह बेदीन फिरका को ठिकाने पे लगा दिया, उनका इलाज किया और उनके बुतलान को आपने जाहिर कर दिया, लोगों को बाखबर कर दिया कि ये लोग फरेबी हैं। और दूसरी तरफ जो दीन के नाम पर बिदअत, दीन में जिसकी कोई असल नहीं, दीन में जिसकी कोई बुरहान नहीं, ऐसे ऐसे लोग दीनदारी के नाम पे बेचारी अकीदतमंद पब्लिक में उधर फिरा देते हैं।
आप हमारे मुरीद हो जाओ ना, बस फिर तुमको कोई परवाह नहीं, हम तुमको जन्नत में ले जाएंगे। ऐसी बात भी करते हैं। और इधर गुजरात में कुछ सूरत की तरफ और हैदराबाद दक्कन की तरफ तो ऐसे भी लोग हैं जो खानका में बैठे हैं, बड़े बड़े बाल और रुमाल बांध करके, और बुजुर्गों का लिबास, और अकीदतमंदों और मुरीदों को कहते हैं आओ सजदा करो। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। लोग सजदा भी कर रहे हैं लोग। अकीदत पर जब इल्म की लगाम नहीं होगी ना, तो ये अकीदत उठाकर जहन्नम के रास्ते पे लगा देगी। बेशक बेशक बेशक। हजरत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं, मन तसव्वफ़ा वलम यतफ़क़्क़ह क़द तज़ंदक़ वमन तफ़क़्क़ह वलम यतसव्वफ़ क़द तफ़स्सक़ वमन जमअ बैनहुमा क़द तहक़्क़क़। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। कितना हसीन निचोड़ दिया है, शरीयत और तरीक़त का मयार बता दिया। सुभान अल्लाह। तो ये आप लोगों से हमारी कुछ गुजारिश है कि दीनी मालूमात आप रखें और अपनी औलाद को दीन सिखाएं। दुनिया की तालीम भी सिखाओ, स्कूल तक, हाई स्कूल तक, कॉलेज तक पढ़ाओ, लेकिन दीन भी सिखाओ। इल्म दीन की लगाम अकीदत पर रहेगी, मोहब्बत पर रहेगी, तो फिर इधर उधर अकीदत बहकेगी नहीं, बेशक अकीदत गुमराह नहीं होगी। इल्म की लगाम और उलमाए दीन की हिदायत और मजहब अहले सुन्नत वल जमाअत की रहनुमाई और आला हजरत के मसलक की निगहबानी। बेशक तो इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसे आलतू फालतू लोगों के चक्कर में भी नहीं आएगा। बेशक मुरी थीवन न चई तो जन्नत में खड़ी वेंदो, बाक़ी कहिड़ो व्याजी माण्हू अहिड़ो शॉर्टकट रस्तो ॻोल्हे था। जलजलाहट आहे, जलजलाहट करो तो क़ब्र में वेंदो ने पवंदी बोतरे त ख़बर पवंदी कि कहिड़ी आहे। अब क्या करें, हमारे भाइयों को कुछ बातें हमको बतानी पड़ती है कि भाई अगर तुम अकीदत रखो, मगर अकीदत को शरीयत की गिरफ्त और शरीयत के कंट्रोल में रखो। सुनिए हजरात, बात हो रही थी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बशरियत की, और कुरान और हदीस शरीफ के इस्लाम में अहले सुन्नत वल जमात के मजहब में जन्नती फिरका में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत का आलम कितना अरफाओ आला है। हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मद्दाहों में से एक मद्दाह है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा पेशे नजर है और वो दस्त बस्ता रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हैं। कहते हैं व अजमल मिन कलम तरक़त आईनी व अकमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन। सुभान अल्लाह। और आपसे बढ़ के कमाल वाला किसी औरत ने बेटा पैदा ही नहीं किया। बेशक अल्लाह ताला ने हर एक हर नक्श से आपको पाक साफ और सुथरा पैदा किया। मेरा विजदान, मेरा ईमान, मेरा अकीदा तो यह है, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जैसा आपने पसंद किया, जैसा आपने चाहा,
آپ کے رب نے آپ کو ایسا ہی بنایا سبحان اللہ کما تشاء۔ اب صحابہ کرام کی اقوال میں